Hello students, welcome to the next class of economics. In this class today we'll discuss about the chapter circular flow of income. It is the chapter of your macroeconomic books, and in this circular flow of income we'll try to understand this whole concept. Basically we are here, we'll discuss in this chapter what is circular flow of income, what are stocks, what are flows, what are injection and leakages, and the circular, along with the circular flow, the two sector economy model along with the financial system. So these are the basic question or the main questions of this chapter which we'll discuss. Nowadays we are on the revision part of the videos, like we are revising the chapters which I have already taught you through Zoom classes. So here we are discussing this circular flow of income chapter. So first of all, it is very important to understand the concept as it is stating, like on your screen it's given circular flow of income, like the flow of income, like income is circulating and it is flowing in the circle, like I can say, like one person is standing here and another is here, like, or the group of some people is here and some group of people is here. So income is going from here to this sector and again from here to it comes back from where it has started going. So this concept is very much relevant what I am explaining you, like there are usually sectors in the economy, household sector, like where like we are in the household sector, we are living at our houses and we are usually consumers. The second sector is your, first is your household, the second is your production sector. In this chapter we have to be centric only up to the household sector and the production sector. We are living in Biswa and it is a very good example, here is a very good example of the production sector, that is your sugar factory. So if I am supposing the sugar factory, so it is a production sector, and if I am counting the people of the Biswa, so they are household sector. I hope it is clear. So here here we will talk about only households and the production sector, but usually in this flow there are two more sectors: household sector, production sector, government sector, like government sector, and the rest of the world. That means ki export and imports of goods and services. So there here are total four sectors, and along with these four sectors, sometimes the question is asking about a financial institution. That means the banks. So along with financial system, there are usually in an economy four sectors are there: household sector, like where we are living; प्रोडक्शन सेक्टर, लाइक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं जो रन कर रहे हैं; थर्ड सेक्टर हो गया गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट है; और फोर्थ सेक्टर है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं किसके साथ होते हैं, या हमारी डीलिंग्स होती हैं हाउस होल्ड्स की और फर्म्स की किसके साथ में, अदर कंट्रीज़ के साथ में, तो उसे हमने बोला है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टर्म। तो टोटल चार होते हैं सेक्टर्स इकोनॉमी के अंदर, बट क्लास 12th में अब हमारे पास कितने सेक्टर हैं, सिर्फ दो सेक्टर हैं। वो कौन से दो सेक्टर हैं हमारे पास जिसे हमें डिस्कस करना है, तो हेयर आर ओनली टू सेक्टर्स, एक यहाँ पर हो गया और एक सेक्टर यहाँ पर हो गया। फर्स्ट सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरे सेक्टर का नाम है प्रोडक्शन सेक्टर, या फिर वी कैन से इट फर्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर, देयर आर ओनली two sectors in the economy, we are assuming that, and along with these two, sometimes the question is asking about a financial institution, जिसका मतलब होता है बैंक्स। हाउस होल्ड होगा इकोनॉमी के अंदर, और प्रोडक्शन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मतलब फर्म्स हैं, और हाउस होल्ड है इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो लोग हैं, और कभी कभी पूछ लेता है कि बैंक भी है। तो जो इनकम का फ्लो है वो किस तरह से होगा इकोनॉमी के अंदर, दैट इज़ द कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट, we'll discuss this point in detail. Along with these, as I said, we'll discuss about stocks and flow, leakages and injections, and about their differences, how we can identify them. So let's move to the next part of the chapter, the definition of circular flow of income. So you are watching on your screens, it is given every word of the term given, like from here to here. This whole is very important, and many new words you are going to get today in this class.
So the production process is a continuous process, okay, because of unlimited and recurring wants of the ह्यूमन बींग्स. अनलिमिटेड माने कभी ख़त्म नहीं होती ह्यूमन की वॉन्ट्स, और रिकरिंग माने बार बार वो चीज़ों की डिमांड करता है. ओके, सो इन दिस प्रोसेस, किसके प्रोसेस में? प्रोडक्शन के. प्रोडक्शन सेक्टर बाइज फैक्टर सर्विसेज. प्रोडक्शन सेक्टर क्या ख़रीदता है? फैक्टर सर्विसेज. अभी फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्टर सर्विसेज होती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर या हम लोग, मैं जैसा मैंने आपसे अर्लियर बताया कि बिस्वा के अंदर एक शुगर फैक्ट्री है, उसको मैंने माना है प्रोडक्शन सेक्टर, और हम जितने लोग बिस्वा में रह रहे हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर हैं. तो हम लोग फर्म को क्या देते हैं? हम लोग उस शुगर फैक्ट्री को क्या दे सकते हैं? फैक्टर सर्विसेज दे सकते हैं. फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है हमारी मेहनत, हमारा वर्क, हमारी जो हम आउटपुट दे रहे हैं जा कर के, उसे हम बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज. ओके, तो क्या लेती हैं हमसे? ये फैक्टर सर्विसेज लेती हैं. एंड सेल्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू देम. और हमें वापस से क्या बेचती हैं? जो भी ये प्रोडक्शन करती हैं वो हमें ये बेच देते हैं वापस. तो कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर. अब अगला टर्म कह रहा है कि जब हमें वो सेल करने आते हैं सामान, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं पैसे? उसका भी आंसर दिया है कि देयर विल बी फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स का मतलब हो गया जो हमने मेहनत कर रहे हैं उसके हमें पैसे रिटर्न मिलते हैं. कहाँ से? उस फैक्ट्री से, उस फर्म से. उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स. मतलब हमारी मेहनत के बदले जो हमें पैसा मिल रहा है उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट. कहाँ से मिलता है? उस प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर सेक्टर से मिलता है. किसको मिलता है? हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब हमको मिलता है. एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर. फिर हम क्या करते हैं? जो पैसे हमको हमारी मेहनत करने के, वहाँ पे काम करने के मिलते हैं, उसे हम किस पे खर्च कर देते हैं? वापस से प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो हमको गुड्स दिए होते हैं, जो गुड्स उन्होंने बनाए होते हैं हमारे यूज़ के लिए, उनके ऊपर हम उन्हें खर्च कर देते हैं. तो मतलब क्या हुआ? एक साइकिल बन गई, एक सर्कल बन गया, जिसमें हमने क्या करा? हमने जा कर के पहले वर्क किया फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री वालों ने हमारी मेहनत के हमको पैसे दिए. फिर जो पैसे हमको मिलते हैं वहाँ पर मेहनत करने के बाद, हम उसका क्या करते हैं? उनसे सामान को ख़रीदते हैं. और वो सामान भी कौन बना रहा है? वही फैक्ट्री बना रही है. तो पहले हम यहाँ पे सपोज़ हम हाउस होल्ड थे और यहाँ पे था हमारा फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर. तो हमने इनको मेहनत करी, इनके यहाँ जाके काम करा, तो इन्होंने बदले में हमको क्या दे दिया? पेमेंट कर दिया, रुपीज़ में दे दिया, या कोई रुपीज़ में दे देंगे हमें इनकम. अब जब हमारे पास पैसे आ गए तो हम क्या करते हैं? हमें क्या चाहिए? रुपए आने के बाद ह्यूमन क्या करता है? उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जो हम नहीं बना रहे. वो कौन बना रहे हैं? ये फर्म वाले बना रहे हैं. तो हम क्या करते हैं? जा करके वही पैसे से वापस इनसे वो गुड्स एंड सर्विसेज हम उनसे ख़रीदने लगते हैं. तो उसके बदले में क्या करते हैं? ये हमको क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. कौन करते हैं? फर्म सेक्टर हमें गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करता है. और उस गुड एंड सर्विस मिलने के लिए हमने क्या करा था? इनको हमने इन्हें पेमेंट किया था, जो इन्होंने हमें पहले हमारे मेहनत के बदले में दिया था. तो आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई सभी के माइंड में कि कैसे ये इनकम का साइकिल चल रहा है और सर्कल बन रहा है. तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेक्टर विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट. दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो रहा है. जैसा मैंने बताया था कि दो सेक्टर और भी होते हैं, और जब भी सिर्फ दो सेक्टर की बात करेंगे, पहला हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया फर्म. हाउस होल्ड ने क्या करा? अपना रॉ मटेरियल या अपनी मेहनत इसको दी, फर्म को दी. फर्म ने उसके बदले में उसकी मेहनत या रॉ मटेरियल के उसको पैसे दे दिए. अब फर्म ने जो सामान बनाया वो किसके यूज़ का था? हाउस होल्ड के था. तो हाउस होल्ड को जब पैसे मिल गए तो उन्होंने वापस से पैसे किसको दे दिए? फर्म से वो सामान खरीदने में वो पैसे लगा दिए वापस से, और फर्म ने उनको गुड्स एंड सर्विसेज इस बार प्रोवाइड कर दी. तो पैसे किसने दिए? पहले फर्म ने इनको दिए, इनकी मेहनत के रॉ मटेरियल के जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, और उन्होंने क्या करा? वापस से वही पैसे किसको दे दिए? फर्म को दे दिए. तो ये क्या हो गया? जहाँ से पैसे आ रहे हैं वापस से इकनॉमी में वहीं पैसे चले जा रहे हैं. फिर जहाँ से फिर ये सर्विसेज उनको देंगे, फिर से उसका पेमेंट मिलेगा, फिर दोबारा से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और ये वाले लोग, और वापस से उसको इनको बेच देंगे. तो ये एक साइकिल जो है, सर्कल चलता रहता है. अगर हमने सिर्फ दो लोगों को माना इकनॉमी में, ये हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर है. ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो. ये रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो रियल फ्लो होता है, व्हाट इज़ दिस रियल फ्लो? इसका हम पहले मीनिंग समझते हैं दोनों कंसेप्ट्स की.
इट रिफर्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब होता है कि अगर हाउस होल्ड ने काम करा है जाके फ़र्म के लिए, तो फर्म क्या करती है उसके बदले में, अगर इन्होंने यहाँ पे वर्क करा है जाके फैक्टर सर्विसेज दी हैं, तो इनको फैक्टर पेमेंट देती है, किसको? हाउस होल्ड को। लेकिन वो क्या देती है उसमें? उनको गुड्स और सर्विस देती है, पैसे नहीं देती है। क्लियर हो गया? ये हो गया रियल फ्लो। अब मनी फ्लो में क्या होता है? इट रिफर्स द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी। अब अगर मनी फ्लो है वहाँ पे, तो इनको वो सिर्फ रुपीज़ में पेमेंट करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देगी। और यहाँ पर रियल फ्लो में उनको गुड्स एंड सर्विसेज भी दे सकती है और मनी भी दे सकती है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट अमंग सेक्टर। फिजिकल आउटपुट मतलब जो गुड्स एंड सर्विस बने हैं, कमोडिटियाँ बनी हैं, थिंग्स बनी, उनको हम एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर मनी का यूज़ नहीं होता है। रियल फ्लो में हम रुपए को यूज़ नहीं करें, करेंसी को यूज़ नहीं करें, जितने ट्रांजेक्शन करते हैं वो हम गुड्स एंड सर्विसेज से ही कर लेते हैं। अब मनी फ्लो में क्या होता है कि मनी फ्लो में हम ट्रांजेक्शन किससे करते हैं? जो करेंसी है, जो कॉइन्स हैं, या जो हमारे पास मनी है, उससे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अब थर्ड पॉइंट कहता है नेचर ऑफ फ्लो कैसा होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, एज ईदर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज अमंग सेक्टर्स। यहाँ पर कैसे एक्सचेंज होते हैं रियल फ्लो में? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। और मनी फ्लो में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, एज ओनली मनी इज़ एक्सचेंज फ्रॉम अमंग सेक्टर्स। तो यहाँ पर हम गुड्स भी चेंज कर सकते हैं और सर्विसेज भी कर सकते हैं और मनी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ रियल फ्लो के अंदर। लेकिन मनी फ्लो में कोई गुड्स एंड सर्विस हम एक्सचेंज नहीं करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स में, सिर्फ करेंसी या मनी का यूज़ करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो है कंसेप्ट बहुत ही नैरो हो गया, इसीलिए इसे हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं और इसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। इसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। ये ब्रॉड है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी दे सकती है हमें फैक्ट्री इन रिटर्न हमारे वर्क के लिए, और मनी भी दे सकती है। यहाँ पर क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन सिर्फ मनी बेस्ड होते हैं, गुड्स एंड सर्विस बेस पर नहीं होते। तो मतलब ये लिमिटेड है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो। किसी भी टू सेक्टर मॉडल में इकनॉमी में क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कौन सा सेक्टर होता है? पहला होता है आपका प्रोडक्शन और दूसरा होता है हाउस होल्ड, ठीक है। ये जो मॉडल है ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक के साथ का मॉडल है। सबसे पहले हमने क्या करा कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज किसको देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो फैक्टर सर्विसेज में क्या आती है? उन्होंने जो लेबर करी, उनकी जो लैंड है, उनके पास जो कैपिटल है और जो इंटरप्रेन्योरशिप है, वो किसको देते हैं? अपनी सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल वगैरह प्रोड्यूसर्स को देते हैं। अब उसके बदले में प्रोड्यूसर उनको क्या प्रोवाइड करता है? अगर उन्होंने लैंड दी है तो रेंट देंगे, अगर लेबर दिया है तो वेजेस देंगे, कैपिटल अपनी दी है तो उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरप्रेन्योरशिप अगर उसमें लगाई है तो प्रॉफिट देते हैं। तो इनके पास अब क्या आ गए? पैसे आ गए। पहले पैसे नहीं थे, बट फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में हाउस होल्ड को पैसे किसने दे दिए? प्रोड्यूसर्स ने। अब क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स को जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं फैक्टर सर्विसेज, तो इनसे ये क्या कर सकते हैं? चीज़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और वो सारे कैसे गुड्स होते हैं? फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाते हैं। अब उनकी डिमांड कौन करता है? हाउस होल्ड उनसे। तो इन्होंने क्या करा, आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ से वो सारी चीज़ें किसको पहुँचा दी? वापस से इनको पहुँचा दी। और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब इन्होंने गुड्स का किया, तो हाउस होल्ड ने वापस से नंबर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इनको पैसे पे करे जो उन्होंने उनसे गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदी हैं, उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये टू सेक्टर इकनॉमी मॉडल है। अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि यहाँ पर क्या होता है, एक बैंक भी है, एक फाइनेंशियल सिस्टम है, तो क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो अपने पैसे यहाँ पर सेव करता है और यहाँ से पैसे वापस बोरो भी करता है, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर भी क्या करता है? हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसे हम बैंक में सेव कर देते हैं। लेकिन ये जो बोरो वाला पॉइंट है नंबर 6, हम यूजुअली बोरो नहीं कर पाते हैं। अगर हम बोरो करने लगते हैं, और हम क्यों बोरो करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें आगे इनकम आए, तो हम किस में बदल जाएंगे? हम फर्म में बदल जाएंगे। तो यूजुअली हमें जो इस मॉडल के अंदर ये जो बैंक है ये कोई भी बोरोइंग नहीं करता है। हम अपने सिर्फ पैसे वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उस पर नॉमिनल इंटरेस्ट हमको मिलता है बहुत थोड़ा सा। और प्रोड्यूसर सेक्टर अपने पैसे भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनको बहुत सारा यहाँ पे बोरोइंग्स मतलब लोन मिल जाते हैं इन फाइनेंशियल सिस्टम से। तो आई थिंक ये पूरा जो सर्कल है ये आप सबको, यू ऑल आर गेटिंग दैट सर्कल। अब स्टेजेस यहाँ पर दी हैं जो कि बहुत ईजी हैं। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट आई हैव डिस्कस, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है और फोर्थ स्टेज क्या है।
So this you need to read. Yeah, now next concept आ गया आपका लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. व्हाट आर लीकेजेस एंड व्हाट आर इंजेक्शंस? बहुत ही क्लियर हो रहा है नाम से. लीकेजेस का मतलब हो गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जहाँ पे इनकम फ्लो हो रही है कोई पैसे वहाँ से निकाल ले वापस. लीक हो जाए. लीक का मतलब क्या होता है? यूजुअली हम वाटर के सेंस में डिस्कस करते हैं कि लीकेज हो रहा है, पाइपलाइन में लीकेज है, मतलब पानी का फ्लो बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द पाइप जा रहा है, आउट ऑफ द टैंक जा रहा है. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मनी की, तो वो पैसे इकनॉमी से कोई बाहर निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है. अब इंजेक्शंस का मतलब होता है इंजेक्ट करना या अंदर किसी चीज़ में किसी चीज़ को इंजेक्ट कर देना, इनफ्लो करना. तो इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा मनी का एडिशन होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स में. इसे बोला इंजेक्शंस हमने. ये आई एम टेलिंग वेरी जनरल व्हाट द लिटिल मीनिंग्स आर सेइंग. नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट. फर्स्ट पॉइंट इज स्टेटिंग these flow variables have a negative impact on the process of production. क्यों होगा? और द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैसों को सेव कर रहे हैं. क्या करें? पैसों को सेव कर रहे हैं. अब इंजेक्शंस क्या होता है? दीज कॉज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे होते हैं? अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. सेकेंड पॉइंट स्टेट करता है हमें कि दीज आर विड्रॉल्स फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. लीकेज मतलब क्या है? लोगों ने पैसे निकाल लिए सर्कुलर फ्लो से, उसे हमने बोला लीकेज. और इंजेक्शंस में होता है मीनिंग कि लोग अपने पैसों को यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी इनकम को, उसे बोला हमने इंजेक्शंस. नंबर थर्ड पॉइंट स्टेटिंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमी. क्या होता है अगर लीकेज हो रहे हैं? तो पहला तो होगा रिड्यूस फ्लो ऑफ इनकम, या प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, इनकम लोगों की कम हो जाएगी. और सेकेंड इम्पैक्ट होता है रिड्यूस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब लोग डिमांड एंड सर्विसेज गुड की ना करके पैसों को सेव करने लगेंगे, और जब लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा, डिमांड नहीं करी, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. अदर साइड पर अगर इंजेक्शंस हो रहे हैं तो क्या होगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी बढ़ जाएगी और जनरेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और क्या करेगी? इंजेक्शंस हो रहे होंगे, प्रोडक्शन हो रहे होंगे, लोगों को वर्क मिल रहा होगा, लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी, तो वो नई नई चीज़ों की डिमांड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी. अब एग्जाम्पल्स क्या हैं लीकेजेस और इंजेक्शंस के? तो अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो ये एक लीकेज होता है. टैक्सेशन और इम्पोर्ट्स अगर हो रहे हैं, बाहर से हम कोई सामान मंगा रहे हैं, तो पैसे किसको जा रहे हैं? दूसरे कंट्री को. तो हमारे फ्लो से पैसे दूसरे कंट्री को मिल गए. टैक्सेशन, जो हमारी इनकम थी, हमारे इनकम का कुछ पार्ट क्या चला गया? टैक्स में चला गया, तो वो भी फ्लो ऑफ इनकम से बाहर हो गया. इंजेक्शंस में क्या हुआ? अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया इकोनॉमी में तो इंजेक्शन है. एक्सपोर्ट्स मतलब जब हमने एक्सपोर्ट करा तो फॉरेनर से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो, पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब कि लोग जब कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो इंजेक्शन होगा, मतलब कि हमारी फ़्लो में ज़्यादा पैसे आने लगेंगे. सपोज़ अभी 10 लोग कार ख़रीद रहे हैं और कल 15 ख़रीदने लगे, तो क्या हो गया? ज़्यादा परचेजिंग हो गई, ज़्यादा पैसे आ गए इकोनॉमी के अंदर, तो क्या कर लोगों ने? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया. अभी लोग 1 एप्पल खा रहे हैं और कल से अगर 2 एप्पल खाने लगे फैमिली, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इंजेक्शन होगा मनी का इकोनॉमी के अंदर. ज़्यादा पैसे आ जाएंगे इकोनॉमी के अंदर अगर लोग कंजम्पशंस को अपने